everyone, class 9th. Today we will start chapter 6 of exercise 6.2. The name of chapter 6 is lines and angles. As you know, that is very simple exercise. First, second, third we have done. Now we start question number 4. It is also very good question. Please see your book on the page number 104. At the page number 104, we will read the question. In figure 6.13, PQ parallel ST. See, we have given two lines like that. This is PQ and here is ST. Both are parallel. Given PQ parallel ST. Angle PQR is equal to 110 degree. Here is a point R. This is PQR, 110 degree. Angle PQR we have given 110 degree. And angle RST is equal to 130 degree. This is point R. RST, this one 130 degree. This is 130 degree. Angle RST is equal to 130 degree. Okay. Find angle QRS. फाइंड करना है angle QRS. CQRS, this angle we are finding. Okay, now see please, we start. एक और चीज, परीक्षा में कभी भी हिंट नहीं आते हैं, इसलिए हम हिंट नहीं लिखेंगे. Now construction. Draw a line parallel AB to PQ. हमने एक AB लाइन, अच्छा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो डॉटेड लाइन से बनाना इसको. जब भी हम कंस्ट्रक्शन करें तो वो लाइन आपकी कैसी होना चाहिए? डॉटेड. हमने एडिशनल लाइन बनाई, ये पॉइंट आप है. ड्रॉ AB parallel PQ. What is? और PQ और ST पैरेलल है तो AB PQ के भी पैरेलल है और ST के भी पैरेलल है. ये भी ध्यान रखिएगा. Let's see, इसे हम एंगल 1 नाम दे देते हैं, इसको एंगल 2 नाम दे देते हैं, और हमें एंगल QRS फाइंड करना है. इसको हम 3 भी बोल सकते हैं. अब आपको मैं एक बहुत सिंपल सी बात बता दूं. अगर हम एंगल 1 और 2 फाइंड कर लेते हैं तो ये लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है. 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर देंगे तो एंगल QRS जो हमें मालूम करना है, QRS वो फाइंड हो जाएगा. Got it? Then start. We know first case. See, first case. देखिए PQ पैरेलल AB, PQ पैरेलल लाइन सेगमेंट AB. तो इसलिए एंगल 110 मींस एंगल PQR प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये क्या होगा? क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है, दो पैरेलल लाइन के बीच की इंटीरियर एंगल है, तो इनका सम 180 डिग्री होगा. वी नो फर्स्ट केस. वी नो एंगल PQ, अपन PQR की बजाय डायरेक्ट 180 लेते हैं. 110 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों ये? क्योंकि एंगल बिटवीन द पैरेलल लाइन, एंगल बिटवीन द पैरेलल लाइन, एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस. ओके बेटा,
तो एंगल 1 हम फाइंड कर लेते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 minus 110, then angle 1 is equal to 180 minus 110 is only 70 degree। हमें नहीं फाइंड करना था बट हमने एंगल 1 फाइंड कर लिया। सिमिलरली सेम कंडीशन एंगल 130 प्लस एंगल 2 plus 130 degree is also 180 degree। The same reason angles between parallel lines, ये reason आएगा यहाँ पर। Then angle 2 is equal to 180 minus 130, then angle 2 will be 50 degree। Okay, अब आपके पास एंगल 1 और एंगल 2 आ गए। C second case। Now angle 1 plus angle 2 plus angle QRS is equal to 180 degree। ये हो गया आपका लीनियर पेयर। angle 1 plus angle QRS, angle 1 plus angle QRS plus angle 2 is equal to 180 degree। Why so? Reason आएगा linear pair। Then angle 1 is equal to 70 degree plus QRS फाइंड करना है। angle QRS plus angle 2 is 50 degree is equal to 180 degree। 70 plus 50 120। angle QRS plus 120 is equal to 180। 120 here in plus, it will go there in minus। angle QRS is equal to 180 minus 120, then angle QRS is equal to 60 degree। यह आपका आंसर है। angle QRS is 60 degree is the answer। तो it was very simple question। ये आपको मालूम होना चाहिए दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है, और अगर इनका सम 180 होगा तो ये दोनों लाइन पैरेलल दोनों तरह से समझ सकते हैं। तो हमने दोनों एंगल आसपास के फाइंड कर लिए पहले 1 और 2, और ये तीनों लीनियर पेयर है। 180 में से इनका सम माइनस किया तो आंसर आया 60। सिंपल। अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। See the question number 5 is also very simple question beta। In figure 6.32 AB parallel CD, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक लाइन सेगमेंट दी है AB पैरेलल CD, ये डायग्राम दिया है। गिवन, आप तुरंत लिखते भी जाएं। गिवन AB पैरेलल CD, angle APQ, here is a point P, angle APQ, we have given 50 degree, angle APQ is equal to 50 degree, and angle PRD is equal to 127 degree, angle PRD 127 degree, angle PRD is equal to 127 degree। Find x and y। Here is x and here is y। Find x and y। वेरी सिंपल। सी बहुत सरल क्वेश्चन है बेटा, चलिए कर लेते हैं हम। फर्स्ट थिंग इज दैट सी
AB parallel CD, then angle X is equal to 50 degree. Why this alternate angle? X तो वैसे ही और हो गया. We know that AB parallel CD. Yes, AB parallel CD and PQ is transversal line. So therefore, X is equal to 50 degree. That Y alternate interior angle. Alternate angles. What is? First X is clear. Now see again. Similarly, 50 plus Y is equal to 150 degree plus Y is equal to 127 degree. 127 degree. ये भी क्यों है equal? Alternate angles. Why these are alternate angles? Because AB parallel CD and PR is intersecting. Got it? Up 50 here is plus, it will go there minus. Then Y is equal to 127 minus 50. So Y is equal to 127 में से 50 माइनस करा 7 माइनस 0 is 7, 12 minus 5 is 7, 1 minus 1 is 0. 77 degree is the Y. Very clear? That is the answer. Very clear everyone? Now question number 6. Let us start. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आप सब फिर कॉपी में नोट कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 is also very good question, very simple. See. Firstly, we read the question number 6. In figure 6.33, PQ and RS are two mirror plates parallel to each other. See, this is PQ, this is a mirror, and RS. Got it? अब क्या होता है? An incident ray AB strikes the mirror PQ and B. ये इंसिडेंस रे इस मिरर PQ पर B पर टकराती है. ओके, आगे. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C. अब ये से टकराकर इस दिशा में BC रिफ्लेक्टेड रे तो RS पर C पर टकराती है एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD और फिर यहाँ CD की ओर चली जाती है, C से D की ओर चली जाती है. Got it? Prove that. पहले तो हम गिवन में लिखें. Given mirror PQ parallel RS, ये हमें दिया हुआ है. Got it? PQ parallel RS, and to prove AB parallel CD, AB parallel CD. AB parallel CD. Now see, we construct something in this diagram. Construction. Draw BM perpendicular. BM perpendicular PQ and CM
परपेंडिकुलर RS। व्हाट इज, अब आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसे हम नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपने पढ़ा है कि साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। गॉट इट? मींस ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। नाउ this is the clear, angle 1 and angle 2 are equal and 3 and 4 are also equal. But we know see this is perpendicular, BM perpendicular CM, तो जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, दिख रहा है आपको? ये एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो ये इन शेप में बनाना, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, एंड वी नो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज BM पैरेलल CN, और ये एंगल में बने हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब आपको मालूम है एंगल 2 3 के इक्वल है, तो एंगल 2 जब 3 के इक्वल है तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? फर्स्ट के। मतलब ये सभी एंगल एक दूसरे के इक्वल है। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, सपोज कीजिए एंगल 2 30 डिग्री है तो एंगल 1 भी 30 डिग्री हो गया, और एंगल 2 30 डिग्री है तो 3 भी 30 डिग्री, और 3 4 के इक्वल है तो 4 भी 30 डिग्री, यानी सभी एंगल इक्वल हो गए। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये सभी एंगल आपस में बराबर है। thus CM angle 1 plus angle 2 is equal to angle 3 plus angle 4, angle 1 plus angle 2 is equal to angle 3 plus angle 4, इसलिए angle 1 plus 2 ये पूरा कंप्लीट एंगल 3 plus 4 इस कंप्लीट एंगल के इक्वल होंगे। और ये कौन से हैं? अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। सो देयरफॉर जब ये दोनों अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं, that means AB parallel CD, AB parallel CD, hence proved, यही सिद्ध करना था, hence proved। ओके बेटा, सो एक्सरसाइज 6.2 इज ओवर। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, नेक्स्ट क्लास में हम 6.3 स्टार्ट करेंगे, फिर कॉपी में भी आप कंप्लीट कर लें ये क्वेश्चंस, और कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ओके बेटा, दैट इज क्लियर? ओके, थैंक यू।